you. First of all, I would like to welcome all the participants to the today's webinar on crew management system. Today we will have a detailed deliberation on the abnormality module of crew management system. It is a vital functionality of CMS directly related with the with the safety of the train operation. Through this module, application facilitates crew as well as CLI to feed the abnormality encountered during the train operation. Abnormality can be fed in the kiosk while sign off. This field cannot be left blank. If nothing is noticed by the crew while the train, he may simply feed nil and proceed for sign off. Besides kiosk, there are several other provisions provided in crew management system to feed the abnormality. We will have a detailed discussion on all the provisions available in crew management system to capture the abnormality. For example, abnormality can be fed by the crew at sign off. Abnormality can be entered by the crew through mobile app. He need not to queue up in front of the kiosk. He can directly feed the abnormality in his mobile app. And there is a provision to upload the picture also in the mobile app. Abnormality can be entered by supervisor on behalf of crew. So we will have a detailed deliberation on all the provisions available in crew management system to get the abnormality, because it is one of the vital functionality related with the directly with the safety of train operation. So once abnormality is entered by the crew or CLI in the system transfers the abnormality to the concerned user department. So we will have a detailed discussion how the abnormalities are handled by the concerned department. Once it is rectified by the department, the same compliance report is sent to the divisional control. So when it is closed by the divisional control, then SMS is sent to the crew. So SMS is sent to boost the confidence of the crew. That's whatsoever I have noticed, I have encountered during the train operation, and I have recorded. The action on the same has been taken by the management, and the complaints has also been sent to the and given to the concerned crew. So this is the overall flow of the abnormality. There are various managerial reports being generated by the system. Department-wise abnormality, duration of the compliance, total details of the abnormality. So there are various managerial reports. So we will have discussion on the managerial reports also. So the provisions available in the system to get the abnormality, action taken by concerned department for rectification, and SMS compliance through the SMS as well as managerial report. So these are the broadly I have categorized the topic, the broad topics for today's discussion. So we will have discussion on each and every topic. So now I'd like to invite Nitish to present before you the complete process of abnormality module in crew management system. So Nitish, please start your presentation. Thank you, And sir. after the presentation, we may have the question answer session also. Yes, sir. Good afternoon to all, sirs. And so today's topic is abnormality during CMS. So I will. नीतीश आप Yes, sir. नीतीश स्क्रीन आपकी विजिबल नहीं है. हाँ ठीक है. ठीक है, sir. Yes, sir. Sir, today is abnormality module. And नीतीश स्क्रीन नहीं आ रही है. नीतीश स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी. सर आप विजिबल है सर स्क्रीन? नो. Yes, sir. Sir screen. अब स्टार्ट हुआ. अब आपका पीसी दिख रहा है, आपका डेस्कटॉप दिख रहा है. Yes.
Sir, today's topic is abnormal CMS. Mm-hmm. Yes. In this slide, we will discuss about the complete flow of abnormality from reporting to the closure of the abnormality and action taken by the department and the control, divisional control. So, abnormal CMS, there are some ways from that the crew can fill crew CLM and the supervisor or division console user and report abnormal CMS. जो भी abnormal जो भी abnormal है वो दो हमारे पास दो मॉड्यूल हैं जिसके अंदर एक मोबाइल ऐप के थ्रू जिसका नाम चालक दल एप्लीकेशन उसके थ्रू कर सकते हैं एंड सेकंड वन इज कियोस्क. So we will discuss about the abnormality reporting kiosk. Abnormality at kiosk. This is the first screen on kiosk. हमारी पहली स्क्रीन की जो कि कियोस्क पे हम देख सकते हैं जब क्रू कियोस्क पे आता है तो ये फर्स्ट स्क्रीन होती है जिसके अंदर क्रू को सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है हिंदी और इंग्लिश. तो आफ्टर सेलेक्टिंग द लैंग्वेज दिस इज द सेकंड स्क्रीन where crew have to select the division and their lobby and crew ID and password. Uh, after that, after login, this is the first login page. इसमें कुछ फंक्शनलिटी जो CMS ने दी हुई है वो हम देख सकते हैं जिसमें कि एक रेड एरो से एबनॉर्मलिटी को हम दिखा रहे हैं. जब एबनॉर्मलिटी पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये हमारा स्क्रीन है जिसके ऊपर कुछ डिटेल्स हम देख सकते हैं जो कि एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड है. सबसे फर्स्ट पार्ट इज क्रू आईडी. क्रू आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आता है जिस आईडी से क्रू अपने लॉगिन कर रहे हैं वही अपने आप आता है. उनका नाम भी अपने आप आएगा. डेजिग्नेशन abnormality date. You have to select the date on which they observe the abnormality and time, loco number, from station and to station. From station and to station is mentioned according to the abnormality of by the crew. And get section, section is related to the from and to station. फ्रॉम एंड टू स्टेशन जिस सेक्शन में लाइक कर रहे होंगे वही सेक्शन यहाँ पे हमें दिखाई देंगे. किलोमीटर फ्रॉम, किलोमीटर टू. एबनॉर्मलिटी जिस किलोमीटर नंबर के बीच में हमें उन्होंने ऑब्जर्व करी है वो यहाँ पर किलोमीटर नंबर पे करते हैं. ट्रेन नंबर जिस वर्किंग कर रहा था क्रू वही अपनी ट्रेन नंबर डालते हैं. उसके बाद नीचे हम देख सकते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स दिखते हैं. OHG बोल थोड़ा. OHG सर अब आवाज सर सही आ रही है सर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. कुछ डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, SNT, CNW, लोको, मिसलेनियस, EMU, DMU, सिक्योरिटी, ट्रैफिक एंड कमर्शियल. क्रू जिस डिपार्टमेंट में एबनॉर्मलिटी फिल करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्रू को वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है. फॉर एग्जांपल इफ क्रू सेलेक्ट द SNT डिपार्टमेंट. SNT डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने कुछ सब हेड्स रखे हैं जिसमें कि जैसे सिग्नल आस्पेक्ट उनको सही नहीं दिखाई दे रहा तो सिग्नल आस्पेक्ट को सिलेक्ट करते हैं. सिग्नल बल्ब अगर फ्यूज है या डिम है तो सिग्नल बल्ब को लेते हैं. इस तरह से हमने कुछ हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ सब हेड्स बनाए हुए हैं. उन सब हेड्स को सेलेक्ट करने के बाद वो जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं. अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से लिखने के बाद कंप्लीट डिटेल लिखने के बाद वो उसको सेव करते हैं. सेव करने के बाद वो एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट हो जाती है. क्रू अपनी एबनॉर्मलिटी जो क्रू ने रिपोर्ट करी है वो ये एक हम बटन देख रहे हैं अटेंडेड एबनॉर्मलिटी. जो भी क्रू रिपोर्ट कर रहे हैं एबनॉर्मलिटी उसमें से जो एबनॉर्मलिटी अटेंड कर चुके हैं डिपार्टमेंट्स और कंट्रोल के थ्रू वो अटेंड करके क्लोज की जा चुकी हैं उसको क्रू यहाँ से चेक कर सकते हैं. उस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास स्क्रीन आती है. फॉर एग्जांपल क्रू ने एक एबनॉर्मलिटी भरी है टाइप ट्रैफिक में भरी है
रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट ये है, एबनॉर्मलिटी स्टेशन गाजियाबाद है, और डिस्क्रिप्शन है। ये वही एबनॉर्मलिटी आती हैं यहाँ पर जो कि जिस पे कि एक्शन ले चुके हैं डिवीजन कंसोल। उसके बाद है फ्लो ऑफ एबनॉर्मलिटी रिपोर्टेड बाय द सुपरवाइजर ऑन बिहाफ ऑफ क्रू। हमने सर इसमें एक फैसिलिटी दी है कि अगर क्रू किसी भी रीजन से एबनॉर्मलिटी फिल कियोस्क पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और सुपरवाइजर ऑन बिहाफ ऑफ क्रू एबनॉर्मलिटी सीएमएस के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सर हम एक देख रहे हैं फंक्शन की रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी। इस पर क्लिक करने हमारे पास वही सेम स्क्रीन आती है सर जो क्रू की उस पर दिखाई देती है। बस वही सेम सुपरवाइजर सबसे पहले यहाँ पर क्रू की आईडी फिल करते हैं। क्रू की आईडी फिल करने पर बाकी डिटेल्स नेम और डेजिग्नेशन उनका बाय डिफॉल्ट उठा लेता है सीएमएस। उसके बाद सर एबनॉर्मलिटी डेट टाइम लोको नंबर फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन गेट सेक्शन फ्रॉम किलोमीटर्स टू किलोमीटर ट्रेन नंबर, और जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट वो एबनॉर्मलिटी भरना चाहते हैं, वो जो भी क्रू बताता है उसके अगेंस्ट एबनॉर्मलिटी भर। नेक्स्ट स्लाइड है सर, इसके अंदर हमने सुपरवाइजर को एक एबनॉर्मलिटी लिस्ट का एक ऑप्शन दिया है। जो भी सुपरवाइजर लॉबी पर सुपरवाइजर की लॉबी पर जो भी एबनॉर्मलिटी क्रू के द्वारा कियोस्क पर रिपोर्टेड की जाती है, उसकी एक लिस्ट सर उनको डिस्प्ले होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आती है, जितनी भी उस लॉबी पर कियोस्क के थ्रू एबनॉर्मलिटी रिपोर्टेड करी जाएंगी, वो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज उनको डिस्प्ले पर्पज से हम दिखाते हैं। सुपरवाइजर कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी एबनॉर्मलिटी। कंप्लीट पावर हैज बीन गिवन टू द डिविजनल कंसोल यूजर to close the abnormality, forward abnormality, and return to the again department abnormality. Some features we will discuss in next slides. Flow of report abnormality by CLI. हमने CLI को भी कियोस्क के थ्रू एबनॉर्मलिटी फिल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। CLI यहाँ पर अपना डिवीजन सेलेक्ट करते हैं, अपनी आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद जब लॉगिन करते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन है रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी। रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी पर क्लिक करने पर सेम स्क्रीन जो कियोस्क पर क्रू के लिए दी थी, सुपरवाइजर को दी थी, वही स्क्रीन वहाँ पर हम CLIs को देते हैं। CLIs के अंदर जो आईडी जिस आईडी से CLI लॉगिन करते हैं, वही आईडी उनको दिखाई देती है सामने, उनका नाम, डेजिग्नेशन। उसके बाद सेम चीज जो एबनॉर्मलिटी डेट टाइम लोको नंबर फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन सेक्शन फ्रॉम किलोमीटर टू किलोमीटर ट्रेन नंबर, और जो भी एबनॉर्मलिटी वो जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, और जो भी रिकॉर्ड वो भरेंगे वो उन्हीं की आईडी के अगेंस्ट सेव होगा। फिर सर हमने सेम फंक्शन जो कियोस्क के साथ साथ हमने जो CMS की मोबाइल एप्लीकेशन है चालक दल एप्लीकेशन, उस पर भी हमने सर फैसिलिटी दी है एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट करने के लिए। कोई भी क्रू अगर अनकंफर्टेबल है कियोस्क पे फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किसी भी टाइम अपनी एबनॉर्मलिटी थ्रू चालक फिल कर सकते हैं। आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही है, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? कुछ या तो यस, आप श्योर सर, श्योर श्योर। सर अब आवाज आ रही है सर सही? हाँ ठीक है, बेटर। सर थैंक यू सर। इसमें सर हमने चालक दल एप्लीकेशन में ऑप्शन दिया है एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट करने के लिए। चालक दल एप्लीकेशन एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है उस पर आपको मिल जाएगी। चालक दल एप्लीकेशन में जब क्रू CLI अपनी आईडी से लॉगिन करते हैं, उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी। रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यही स्क्रीन आपके पास वहाँ पे ओपन होती है। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट एबनॉर्मलिटी हेड। एबनॉर्मलिटी हेड के अंदर वो सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो हमने सर अभी कियोस्क की स्क्रीन पर देखे थे, जिसमें OHE एंड सिक्योरिटी, SNT, DMU, VMU एंड एक्सेट्रा। उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट, ये सर डिपार्टमेंट्स आगे सारे OHE इंजीनियरिंग, SNT, CNW, लोको, EMU, DMU, सिक्योरिटी, ट्रैफिक, कमर्शियल, ये सभी वही डिपार्टमेंट्स हैं जो कियोस्क पे आ रहे थे।
उसके बाद अगर हम इसमें OHE सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है उसके सब हेड सेलेक्ट करने का। सब हेड में जो भी सब हेड क्रू सेलेक्ट करेगा, क्रू या CLI सेलेक्ट करेंगे, उस हेड के आगे ये हमारी एबनॉर्मलिटी सेव होगी। और इसमें हम देख सकते हैं इसके बाद एबनॉर्मलिटी टाइम एंड सर इसमें हमने मोबाइल के थ्रू एक हमने एक्स्ट्रा फीचर जो दिया है वो है एबनॉर्मलिटी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इमेज अपलोड करने का। हम इसमें कैमरा इनेबल करके भी फोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं, प्लस हम अगर कोई कैप्चर करी हुई है गैलरी के थ्रू भी हम उसको इमेज को अपलोड कर सकते हैं। नीचे उसमें है सर एबनॉर्मलिटी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम सारी चीज़ें जो भी एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड हैं वो लिख सकते हैं। जर्नी डेट, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, फ्रॉम किलोमीटर टू किलोमीटर, लोको नंबर एंड ट्रेन नंबर, और सेव कर देते हैं। उसके बाद इसमें सर CLI नीतीश थोड़ा बैक जाना, प्रीवियस स्लाइड पे जाना। ये सर इसमें हाँ बस सर होल्ड डाउन नीतीश, एक सेकंड होल्ड डाउन। इसमें वन इम्पोर्टेंट एनहांसमेंट डन रिसेंटली। सपोज क्रू इज बेस्ड एट दिल्ली डिवीजन, गाजियाबाद लॉ भी दिल्ली डिवीजन का है। For example, he is operating a train from Delhi to Ambala. At Ambala Kent, he noticed some abnormality. At Ambala, he booked from Delhi to Ambala. Ambala, he signs off and feed the abnormality. Then the abnormality earlier used to be reflected at Delhi divisional console because crew is of Delhi-based crew. Now we have done the modification based on the location of two stations. The abnormality will be directed to the concerned divisional console. अगर टू स्टेशन अंबाला में है तो ऑटोमेटिकली अबनॉर्मलिटी अंबाला चली जाए, अंबाला कंसोल पे दिखाई देगी। अगर टू स्टेशन दिल्ली डिवीजन में है तो अबनॉर्मलिटी दिल्ली कंसोल पे आ जाएगी। पहले क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन द बेस लॉबी ऑफ द क्रू, वहां डिस्प्ले होती थी। तो अब ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी कंसर्न डिवीजन को। ओके नितिश, प्रोसीड फर्दर। थैंक यू सर। यस, इसमें CLI और जो क्रू है वो जो भी एबनॉर्मलिटी अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं वो थ्रू अलग अलग एप्लीकेशन भी उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम देख रहे हैं रिपोर्टेड एबनॉर्मलिटी, सेम जैसे कियोस्क में हमने ऑप्शन दिया था रिपोर्टेड एबनॉर्मलिटी चेक करने का, वही लिंक हमने यहाँ पर भी दिया है। CLIs को हमने एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे दिया है, एबनॉर्मलिटी अलॉटेड क्रू। ये यहाँ पर है एबनॉर्मलिटी अलॉटेड क्रू। इसमें CLIs के अंडर में जितने भी अलॉटेड क्रू हैं उन्होंने जो भी एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट करी है CMS में वो सारी एबनॉर्मलिटीज CLIs देख सकते हैं और उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद सर फ्लो ऑफ SMS अलर्ट और रिपोर्टेड एबनॉर्मलिटी। हमने सर एक फीचर ऑलरेडी CMS में था जिसमें कि क्रू जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एबनॉर्मलिटी फिल कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के कंसर्न नंबर जो कॉन्फ़िगर्ड है उनके पास SMS अलर्ट जाता था। और सर वो SMS अलर्ट जो जाता था उसके नंबर कॉन्फ़िगरेशन का एक फ्लो है। जो हमने नंबर कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस है उसका हमने जो लिंक दिया है एबनॉर्मलिटी नंबर कॉन्फ़िगरेशन डिविजनल कंसोल यूजर को दिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं एबनॉर्मलिटी नंबर कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटी, CNW, लोको, इंजीनियरिंग, SNT, OHE एक्सेट्रा, वो सारे ग्रुप्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये बटन दिए हुए हैं, रेडियो बटन। हम जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपने नंबर मोबाइल नंबर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं जिनको SMS कंसर्न एबनॉर्मलिटी का जाए तो हम उस डिपार्टमेंट पे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कोई भी लोको पे ले लेंगे तो उसमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नंबर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्शन आता है। नंबर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हमारे पास ऑप्शन आता है जिसमें यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और ईमेल आईडी, इस लिस्ट को हम ऑल्टर भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और किसी अगर हम एक्स्ट्रा किसी और को ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर
जो प्लस का साइन है क्लिक करके हम किसी और को नंबर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उस जो भी नंबर हम यहाँ पर फिल करते हैं उस नंबर की डीएनडी सर्विस जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो सीएमएस के जो भी एसएमएस एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड है, जब क्रू या सीएलआई उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एबनॉर्मलिटी फिल करेंगे तो उस यूजर के पास एसएमएस जाएगा। अब फॉरवर्डिंग फंक्शनैलिटी एंड क्लोजिंग एबनॉर्मलिटी। द कंप्लीट पावर टू फॉरवर्डिंग एंड क्लोजिंग एंड एक्शन टेकन ऑन एबनॉर्मलिटी हैज बीन गिवन टू द डिविजनल कंसोल यूजर। पहले सीएमएस में ये फंक्शन जो था ये लॉबी सुपरवाइजर को भी दिया हुआ था, बट लास्ट वर्जन में हमने इसको विड्रॉ किया और कंप्लीट पावर जो है डिविजनल कंसोल यूजर को दी। डिविजनल कंसोल यूजर में एबनॉर्मलिटी लिस्ट, इसमें एबनॉर्मलिटी लिस्ट एक ऑप्शन है। एबनॉर्मलिटी लिस्ट में क्लिक करने पर ये स्क्रीन डिविजनल कंसोल यूजर को दिखाई देती है, जिसमें उस डिवीजन में जितनी भी एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट करी गई हैं वो सारी एबनॉर्मलिटीज यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। और यहाँ पर कुछ आप ये देख पा रहे होंगे, कुछ ऑप्शंस हैं। पीएन मीन्स पेंडिंग, अभी तक वो एबनॉर्मलिटी पेंडिंग है। क्लोज इज ऑप्शन फॉर टू क्लोज द एबनॉर्मलिटी। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऑप्शन है अगर वो एबनॉर्मलिटी डिवीजन से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी दिल्ली के क्रू ने एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट करी दिल्ली में, बट वो एबनॉर्मलिटी थी अनदर डिवीजन, लेट से अंबाला डिवीजन की। तो उस एबनॉर्मलिटी को डिवीजन कंसोल यूजर फॉरवर्ड कर सकते हैं टू अंबाला डिवीजन। डिवीजनल कंसोल यूजर सेलेक्ट द फॉरवर्ड ऑप्शन। सारे डिविजन्स की लिस्ट हमारे पास ओपन होती है और अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर नंबर एंड टू स्टेशन और स्टेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन, कंट्रोलर कैन डिसाइड द एबनॉर्मलिटी डिवीजन और वो उस डिवीजन में उस एबनॉर्मलिटी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद जो एबनॉर्मलिटी हमारे पास फॉरवर्ड होकर आती है उस एबनॉर्मलिटी का जो कलर कोड होता है आप देख सकते हैं नीचे, एबनॉर्मलिटी फॉरवर्डेड बाय अदर, उसकी कलर कोडिंग इस कलर में आपको डिस्प्ले होती है। उसके बाद ऑप्शन है एक रिटर्न। रिटर्न में इस एनी डिपार्टमेंट has claimed that that particular abnormality is not related to that department and उसने उसमें रिमार्क दिया है कि ये जो एबनॉर्मलिटी है ये हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। एंड डिविजनल कंसोल यूजर कैन चेंज द डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी। फॉर एग्जांपल क्रू ने कोई रिपोर्ट की एबनॉर्मलिटी लोको के अंदर, बट हो सकता है कि वो लोको से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी ना हो, वो CNW से रिलेटेड हो। तो डिविजनल कंसोल यूजर उस एबनॉर्मलिटी के डिपार्टमेंट को चेंज करके CNW कर सकते हैं। जैसे ही उसके डिपार्टमेंट को चेंज किया जाता है तो वो एबनॉर्मलिटी उस डिपार्टमेंट से हटकर दूसरे डिपार्टमेंट के कंसर्न जो यूजर्स हैं उनके पास एसएमएस जाएगा और उनके कंसोल में डिस्प्ले होगी। उसके बाद एक ऑप्शन है रिटर्न का। रिटर्न में आप देख सकते हैं अगर किसी डिपार्टमेंट ने अपना रिमार्क किसी एबनॉर्मलिटी के अगेंस्ट दिया बट डिविजनल कंसोल यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिमार्क, तो वो अपना रिमार्क देके वापस उस एबनॉर्मलिटी को उस ही डिपार्टमेंट को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने के बाद उसकी कलर कोडिंग ग्रीन कलर से होती है। जैसे ही किसी भी एबनॉर्मलिटी को रिटर्न वापस किया जाता है डिपार्टमेंट को, तो अगेन वो एबनॉर्मलिटी फॉर रिमार्क ओपन हो जाती है डिपार्टमेंटल यूजर के लिए। अभी हम डिपार्टमेंटल यूजर की स्क्रीन को आगे देखेंगे। डिपार्टमेंटल यूजर लॉगिन
and abnormality flow. Departmental user can log in voice network as well as internet for taking action on reported abnormality. And department user can also log in mobile application of CMS Charlakdal for disposal of the reported abnormalities. फर्स्ट टाइम जो भी आईडीज क्रिएट करी जाती हैं डिपार्टमेंटल यूजर के लिए, उसकी रिक्वेस्ट आपको हमें भेजनी होती है अपने इस ऑफिस में, एंड हम यहाँ पे जो भी एबनॉर्मलिटी के यूजर है वो उसे क्रिएट करते हैं वन टाइम। ये आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर यूजर नेम की यूजर डेजिग्नेशन, हेडक्वार्टर कोड कोड एंड अथॉरिटी टाइप, डिविजनल कोड, कॉन्टैक्ट नंबर। This is the screen. Departmental user can remark on pending abnormality through this page. इसमें जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास स्टेटस का एंड रिमार्क का। जब डिपार्टमेंट यूजर अपने वॉइस नेटवर्क पे या इंटरनेट पर अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो उनको ये स्क्रीन दिखाई देती है। उसमें आपके कंसर्न डिवीजन के जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट की एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट करी गई होंगी, पेंडिंग होंगी, वो सारी इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन भी आएगा, आपका क्रू आईडी आएगा, क्रू नेम आएगा, रिपोर्टिंग टाइम आएगा, एंड टाइप टाइप के अंदर जो जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भरी गई है, इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है, फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, किलोमीटर फ्रॉम एंड किलोमीटर टू, एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें डिपार्टमेंटल यूजर अपना रिमार्क यहाँ पर देंगे और उसको स्टेटस को यस कर देंगे। जैसे उनके थ्रू उनका रिमार्क अपलोड कर दिया जाता है तो आप देख सकते हैं नीचे सबमिटेड एबनॉर्मलिटी लिस्ट बाय डिपार्टमेंट। These abnormalities are those in which departmental user has given the remark, और अभी ये स्टिल ओपन है एबनॉर्मलिटी। डिजिटल कंसोल यूजर ने अभी तक इन एबनॉर्मलिटीज को क्लोज नहीं किया है, बट डिपार्टमेंटल यूजर ने इनके अगेंस्ट अपना रिमार्क दे दिए। उसके बाद फंक्शनलिटी हमने चालक दल एप्लीकेशन में दी है डिपार्टमेंटल यूजर के लिए। डिपार्टमेंटल यूजर अपनी उन्हीं सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। फर्स्ट लॉगिन पेज में लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये स्क्रीन उनको दिखाई देती है जिसमें कि टोटल सबमिटेड एबनॉर्मलिटीज एंड टोटल पेंडिंग एबनॉर्मलिटीज की लिस्ट सामने आती है ग्राफ में। जब वो इनमें से किसी पे भी फॉर एग्जांपल उन्होंने टोटल पेंडिंग पे क्लिक किया तो 6 एबनॉर्मलिटीज जो हम देख पा रहे थे ग्राफ में, 6 एबनॉर्मलिटीज जो पेंडिंग थी उसकी लिस्ट हमारे पास आती है सामने। उसमें से किसी एक को भी जिसपे भी डिपार्टमेंटल यूजर अपना एक्शन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं, उस एबनॉर्मलिटीज की डिटेल हमारे पास सामने आती है जो भी क्रू एट ए टाइम ऑफ साइन ऑफ और थ्रू चालक दल एप्लीकेशन रिपोर्ट करते हैं। उसमें एबनॉर्मलिटी डिस्क्रिप्शन आता है एंड यूजर कैन गिव द रिमार्क इन दिस कॉलम एंड सेव इट। जैसे ये सेव करेंगे तो ये रिमार्क उस एबनॉर्मलिटी के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल यूजर का सेव हो जाता है। इसी तरह से जो एबनॉर्मलिटी अटेंडेड है इसमें डिपार्टमेंटल यूजर ने अपना रिमार्क दे चुके हैं, वो लिस्ट में आते हैं और उसमें क्लिक करने पर उनका रिमार्क वो देख सकते हैं कि उस एबनॉर्मलिटी के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल यूजर ने क्या रिमार्क दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट्स फॉर IR लेवल यूजर्स एंड अदर यूजर्स। सर इसमें ये हमारा सर डैशबोर्ड है।
This is the IR level. This is the dashboard for IR level user of CMS report. इसके अंदर हमने दो डैशबोर्ड बनाए हैं एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड. इसमें एबनॉर्मलिटी ऑल एंड एबनॉर्मलिटी पेंडिंग. एबनॉर्मलिटी ऑल पे जब हम क्लिक करते हैं तो पूरे IR में जितनी भी एबनॉर्मलिटी लास्ट 30 डेज में रिपोर्ट करी गई हैं वो सारी की सारी हमारे इस ग्राफ में दिखती हैं. हम एग्जांपल ले लेते हैं NR के लिए. NR में मैक्सिमम 238 टोटल 240 एबनॉर्मलिटीज रिपोर्ट करी गई हैं लास्ट 30 डेज में, जिससे क्लोज हैं 938 एंड पेंडिंग 2 abnormalities. After click on this, Delhi division, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद एंड अम्बाला. दिल्ली डिवीजन में टोटल लास्ट 30 डेज में 849 एबनॉर्मलिटीज रिपोर्ट करी गई हैं, जिसमें से 848 एबनॉर्मलिटीज आर क्लोज्ड एंड 1 एबनॉर्मलिटी इज स्टिल पेंडिंग फॉर क्लोजिंग. दिल्ली डिवीजन में क्लिक करने पर दिल्ली डिवीजन की सारी जितनी लॉबीज हैं वो डिस्प्ले होती हैं और उसमें हम देख सकते हैं दिल्ली के अंदर 795 एबनॉर्मलिटीज रिपोर्ट करी गई हैं लास्ट 30 डेज में. तो सारी की सारी लॉबीज के अगेंस्ट हम चेक कर सकते हैं कि किस लॉबी के अगेंस्ट एबनॉर्मलिटी कितनी रिपोर्ट करी जा रही है, कितनी अभी पेंडिंग है एंड कितनी क्लोज हो चुकी है. उसके बाद जो हमारा सेकंड डैशबोर्ड है, और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, इसमें हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं रिवीजन के अगेंस्ट. उसके बाद ऑप्शन जो हमारा सेकंड डैशबोर्ड है वो है एबनॉर्मलिटी पेंडिंग. एबनॉर्मलिटी पेंडिंग, अभी जितनी भी एबनॉर्मलिटी हमारे IR में जो उसमें पेंडिंग है उसका डैशबोर्ड है. अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल NR की बात करें तो अभी NR में 125 पेंडिंग एबनॉर्मलिटी हैं जिन पे अभी तक एक्शन नहीं लिया गया. उस पर क्लिक करते हैं तो दिल्ली डिवीजन 108, फिरोजपुर 1, लखनऊ 6, मुरादाबाद 2, अम्बाला 8 एबनॉर्मलिटीज हैं जो अभी पेंडिंग है. दिल्ली पे क्लिक करने पर सारे डिपार्टमेंट्स की हमने ये ग्राफ है जिसमें हम एक देख सकते हैं एट अ वन ग्लांस कि किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हमारी कितनी एबनॉर्मलिटी अभी पेंडिंग है. फॉर एग्जांपल SNT के अंदर अभी 56 एबनॉर्मलिटीज पेंडिंग है, इंजीनियरिंग में 42, लोको में 1, OHE में 4, सिक्योरिटी में 5. इस तरह से हम पूरे IR लेवल से लेकर लॉबी तक और डिवीजन तक हम पूरी रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं कि हमारे IR में किस लेवल पे कितनी एबनॉर्मलिटी पेंडिंग है, कितनी रिपोर्ट करी गई और कितने के अगेंस्ट एक्शन लिया गया, हम इन डैशबोर्ड से देख सकते हैं. नीतीश यस सर. नीतीश नीतीश लेफ्ट साइड में जो फिल्टर्स है इनका भी दिखा दो. ये एडिशनल यस है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करना है. यस सर. नहीं, पहले IR डैशबोर्ड पे दिखा दो. एबनॉर्मलिटी वाला ओपन करो, एबनॉर्मलिटी टोटल वाला. ये तो लास्ट 30 डेज का है. और कोई किसी पर्टिकुलर पीरियड का देखना है तो लेफ्ट साइड से वो सिलेक्ट कर लो फिल्टर से. नीतीश IR पे क्लिक करो. अब ये एडिशनल फिल्टर है, इनके बारे में बता दो. हमने सर इसमें फिल्टर्स भी दिए हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सर SNT, एंड इसमें हम ड्यूरेशन लिए कि अगर हमें 30 दिन से कम का देखना है, लेट से तारीख से लेके और 17 तारीख तक,
तो ये जो हमारी रिपोर्ट्स आएंगी सर, ये केवल हमारी एसएनटी डिपार्टमेंट्स की होंगी, और इसके अंदर भी वही सेम ड्रिल डाउन तक हम आगे जा सकते हैं। जैसे दिल्ली डिवीजन में क्लोज 67 एंड पेंडिंग अभी 56 है, फिरोजपुर में क्लोज 6 है, पेंडिंग 0 है, लखनऊ में क्लोज 5 है, पेंडिंग 2 है। इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए भी हम अपनी एबनॉर्मलिटी को देख सकते हैं। तो हम जैसे दो को लेते हैं सर, और हम इसके अंदर फॉर 1 डे के लिए भी देख सकते हैं, 1 महीने तक के स्लॉट के लिए भी देख सकते हैं। ये सारे लोगों की एबनॉर्मलिटीज हैं जो कि 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक ली गई हैं स्लॉट जो है। और इसके अंदर हम इस तरह से अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग भी अपनी डैशबोर्ड को देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से एबनॉर्मलिटी पेंडिंग, फॉर एग्जाम्पल लो को हमने ले लिया, पेंडिंग ले लेते हैं 1 to 10। एनसी में 4, NF1, SEC1, WR1। एनसी में झांसी 4, झांसी में लोको में 4। इस तरह से सर ड्रिल डाउन में हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कितनी एबनॉर्मलिटी पेंडिंग है हमारी, वो आई लेवल से लेके हम अपने लॉबी तक और डिवीजन तक उसको ड्रिल डाउन करके चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद सर हमने कुछ और रिपोर्ट्स एबनॉर्मलिटी की हैं। एग्जाम्पल सर नॉर्दर्न की दिल्ली डिवीजन में, दिल्ली ले लीजिए सर। एबनॉर्मलिटी हेलो abnormality reported total abnormality. If we want to check the total reported abnormality for any particular period of time, then we have to select the period. For example, 1st of September to 15th of September, division 12, Delhi division. This is the count जिन्होंने दिल्ली डिवीजन में एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट करी है पिछले 15 दिनों में, 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आईडी, टाइप, सब हेडिंग, रिपोर्ट स्टेशन, फ्रॉम स्टेशन, टू स्टेशन, क्रू ऑब्लिक CID, डेजिग्नेशन, एबनॉर्मलिटी डेट, टाइम, फ्रॉम किलोमीटर टू किलोमीटर, स्टेटस YS means yes, it means this abnormality has been closed and action has been taken on this abnormality. And PN means this abnormality is still pending for taking action. App user means this abnormality is reported by the Chalak Dal mobile application. And supervisor also means supervisor the abnormality on behalf of crew. क्रू मीन्स क्रू ने अपनी एबनॉर्मलिटी फिल करी है कियोस्क। टोटल एबनॉर्मलिटी जो 50 डेज के अंदर दिल्ली डिवीजन में रिपोर्ट करी गई है और 298। डिस्क्रिप्शन भी दिखाओ। Yes sir, description, if you want any description, so this is the details of this particular abnormality. BPC number they issued at CWS
BRC Western valid for this, and action taken is also written at the bottom of this message given to BRC WR CNW control for action, but kilometer run by crew may be endorsed in the side of BPC. So this is the complete detail of the abnormality. SNT की अगर हम देखते हैं तो डिटेल्स SNT की A707 was green and A709 given double yellow, but HUK home signal was green. So this is the detail of that particular abnormality reported by CLI, reported by mobile application. So this is the complete report. If we want to check the abnormality reported for any particular period of time, then we can see this report. सेकेंड रिपोर्ट है सर हमारी एबनॉर्मल क्लोजिंग रिपोर्ट। फिर हम डिवीजन लेकर चेक करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। यस सर, तो दिस इज द रिपोर्ट। हम इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कितनी एबनॉर्मलिटी रिपोर्ट करी गई और उन एबनॉर्मलिटीज के अगेंस्ट कितने ड्यूरेशन में एक्शन लिया गया। फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट एबनॉर्मलिटी करी गई है, अभी से अगर 8 घंटे पहले के अंदर उस एक्शन लिया गया तो उसका काउंट यहाँ पर आता है। less than 8 hours, 8 to 16 hours, 16 to 24 hours, 1 day to 3 days and 3 days to 10 days, 10 days and still open। अगर एबनॉर्मलिटी अभी भी ओपन है तो उसका उनका काउंट यहाँ पर आता है सर। टोटल रिपोर्टेड एबनॉर्मलिटीज एंड टोटल एबनॉर्मलिटीज एक सर ये रिपोर्ट होती है। उसके बाद सर एक रिपोर्ट और है जो अभी हमारे इस नए वर्जन पे मैं स्लाइड खोल लेता हूँ। एक एबनॉर्मलिटी समरी रिपोर्ट आती है। अपने किसी भी डिवीजन का ये चेक कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट फॉर पर्टिकुलर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कितनी एबनॉर्मलिटीज फिल करी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ साइन ऑफ कितने हुए थे, एबनॉर्मलिटी फील्ड अगेंस्ट साइन ऑफ टोटल कितने हुए, CNW डिपार्टमेंट के लिए कितने हुए, कॉमर्शियल के लिए कितने हुए, इंजीनियरिंग के लिए कितने हुए, लोको के लिए। इस तरह से हर डिपार्टमेंट का जो रिपोर्टिंग एबनॉर्मलिटी के अकाउंट है वो सब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग उसके बाद सर एबनॉर्मलिटीज के अंदर यही था। थैंक। और अगर सर कोई भी क्वेरी हो तो सर आप कोई पूछ सकते हैं सर। Sir, now we may take question and answers. I would request the users to give suggestions for further improvement. अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ डिटेल्स वगैरह और फिल अप करनी है या कुछ डिटेल्स हटानी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू मे सेंड योर सजेशंस। Good evening, sir. This is Arpit from Hyderabad division. Yes. Sir, I want a suggestion for that कि जब हम जैसे किसी डिपार्टमेंट ने सर फीडबैक दिया तो मुझे सर उसके एक SMS अलर्ट के थ्रू पता चल जाए कि हाँ उसने फीडबैक दे दिया, ताकि एनी टाइम हम लोग उसे क्लोज करवा सकें। एट दैट टाइम को तुरंत ही क्लोज हो जाए। Okay. And sir, and there is one
आइडिया इज फॉर ऑल्सो दैट कि जैसे किसी डिपार्टमेंट ने 72 आवर्स के अंदर क्लोज नहीं किया नॉर्मलिटी, तो उसके कंसर्निंग ब्रांच ऑफिसर को वो मैसेज जाए आफ्टर 22 आवर्स। अगर उसके बाद भी नहीं Okay. होता तो हायर अथॉरिटी, एंड आफ्टर दैट अगर वहां पे भी नहीं हुआ तो और हेडक्वार्टर अथॉरिटी, लाइक दैट। इससे क्या होगा सर कि लोग क्लोज जल्दी करेंगे डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट क्लोज करने में थोड़ा लेट करते हैं तो उनके पास जा जाके क्लोज कराना पड़ता है सर उनको। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी दोनों कंसर्न जेन्युइन है। एक तो एसएमएस अलर्ट फॉर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द यूजर डिपार्टमेंट कि यूजर जब रिमार्क लिख के भेज रहा है कंप्लाइंस का, तो जी सर, मतलब डिविजनल कंट्रोलर को एसएमएस अलर्ट मिल जाए, जिससे उसको वो जी चेक करके उसको फर्दर एक्शन ले सके, क्लोज करना है या वापस रेफर बैक करना है। और सेकंड, अगर मोर देन प्री स्पेसिफाइड आवर्स जैसे 72 आवर्स तक क्लोज नहीं हुई है तो उसको जी एस्केलेट कर दिया जाए उसका जी एसएमएस अलर्ट। जी जी तो सर, ओके ओके, ये तो हम ये कर देते हैं, ठीक है। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। नीतीश इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो हो जाएगा। नो सर, मेरे हो जाएगा सर। ठीक 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 है, परफेक्टली ओके। थैंक यू सर। हेलो नीतीश जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार। पुनीत कुमार बोल रहा हूँ सर, वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल डिवीजन सबअर्बन से। यस सर, पुनीत सर बोलिए। सर ये हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि डिफिशियंसी फीड करने में लोको ईएमयू का नंबर नहीं लेता है। जैसे ही उसका नंबर डालेंगे लोको नंबर नॉट फाउंड करके आता है, और सबअर्बन की कोई भी क्रू उसमें डिफिशियंसी फीड नहीं कर पा रहा है, जिसमें लोको नंबर कंपलसरी है। उसमें कुछ डिफिशियंसी सुपरवाइजर कंसोल से फीड कर रहे हैं, जिनमें लोको नंबर कंपलसरी नहीं है। यस सर, ये पॉइंट सर नोट कर लिया है सर, इसको इनेबल करवा देंगे सर। आपका जो ईएमयू नंबर है उसको इनेबल करवा देंगे सर एज सून एज पॉसिबल, सो कैन आल्सो फिल द प्रॉब्लम। ये इशू हमें नीतीश सर सेम इशू सीएलआई जब चालक दल से करते हैं तो वहाँ भी वही प्रॉब्लम आ रही है, वो लोको नंबर की जगह नंबर नहीं ले रहे हैं और वो फीड नहीं कर पा रहे हैं। जो ये आप नंबर हमें कम्युनिकेट कर देना, हाँ उसको इनेबल कर देंगे यहाँ से। ठीक है सर। सर हेलो, हाँ हाँ प्लीज। सर सारे के सारे ईमेल के नंबर देने पड़ेंगे। सर हाँ जो तो सर हमारे पास आपके जो अभी हमारे पास है सर, अभी इनको हम डेटाबेस में डाल दे, डेटाबेस से लिंक कर देंगे। जो नहीं ले रहे हैं, जो पर्टिकुलर मोटर कोच नंबर यू हैव सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे डेटाबेस में आपके ईएमयू कुछ मोटर कोच नंबर हैं, और जो उसको सर हम अभी एबनॉर्मलिटी से लिंक करवा लेते हैं। और जो एबनॉर्मल जो लोग मोटर कोच नंबर अभी एबनॉर्मलिटी में लोको नंबर में एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, आप केवल उनकी लिस्ट सर हमें दे दीजिएगा, ताकि हम उसको चेक करके और अपने डेटाबेस में डलवा दें। नितिन सर, यस सर, सुन रहा हूँ सर। यस सर बोलिए। कई बार सबमिट कर दिए लोको नंबर विथ यूनिट नंबर विथ सेड, तो अभी तक तो नहीं हुआ। आप दानापुर से बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं हावड़ा डिवीजन से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ये दानापुर से तो रिक्वेस्ट आई थी, दानापुर अपने का तो यहाँ मैंने पे रिव्यू चला करा दिया था। हावड़ा डिवीजन से बोल रहा हूँ। नहीं, अभी मेमो यूनिट नंबर सर एक बार चेक करवा लेता हूँ। आप सर कहीं पर अगर हो सके तो जो आपने सर लेटर दिया था उसकी मुझे इमेज भेज दीजिएगा, तो उसको सर चेक करवा लेंगे। नितीश जी, ठीक सर। हेलो हेलो नितीश जी, नितीश जी, हेलो बोलिए। नितीश जी, अमित सक्सेना भुसावल से बोल रहा हूँ, एलपीजी भुसावल। हाँ जी सर, हाँ जी। एक चीज मेरे को बताइए, जैसे एक तो अपने पास जो एबनॉर्मलिटी हेड है कमर्शियल, सर तो ये कमर्शियल में एक्चुअली
वर्क से रिलेटेड क्या पता है उसको, एलपी को कैसे पता चलेगा? हेलो अजय, एब्नॉर्मलिटी रिकॉर्ड एक बार में एक आदमी ही बोले, हेलो क्रॉस टॉक हाँ काफी हो जा इको, रहा है अजय, एक बार में एक ही हाँ आदमी इको बोले। इको वॉइस आ रही है। हेलो जी सर, आप नितीश जी, अमित सक्सेना। बताइए। हाँ सक्सेना सर बताइए। हाँ जी, अच्छा एक तो ये जो अपना आइटम था इसका एब्नॉर्मलिटी CLI से जो अपन फीड करते हैं उसका, जो अपन LI अगर चाहेगा फीड करना, हाँ इसमें जो क्रॉस टॉक ज्यादा हो रहा है, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है सर म्यूट कर ले सर अपना जो माइक है, डिस्टरबेंस आ रहा है सर बहुत ज्यादा। मूव करके जो बोलता है उसी उसी करिए। थोड़ा आवाज आ रहा है, ठीक है। हेलो सर हेलो सर, हाँ जी बोलिए। सर बोल रहे हैं कि जो आप अभी मीटिंग हुआ तो हम लोगों ने हाफ में ज्वाइन किया, तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा क्या? हाँ हम लोग अपलोड करेंगे, विल अपलोड ऑन यूट्यूब। अच्छा, किस नाम से होगा? We will share the link. When we'll upload, we'll share the link. ओके ओके, थैंक यू। हेलो नितेश जी, जब क्रू, हेलो नमस्कार सर, नमस्कार सर नमस्कार। सर, ये क्या हो रहा है जब भी कोई क्रू अदर डिपार्टमेंट से आ रहा है कि अदर डिवीजन से ट्रांसफर का आ रहा है, वो अबनॉर्मलिटी चालक दल आप में वो नहीं दिखाई दे रहा, वो क्लोज नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी उसका अगेंस्ट में रिमार्क लिखा हुआ है। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं वाल्टर डिवीजन से बोल रहा हूँ। ओके सर। अच्छा एक डिपार्टमेंट से कि मैं अदर डिवीजन, एक डिपार्टमेंट अदर डिवीजन से जब भी ट्रांसफर होकर आ रहा है कोई केस, ऑलरेडी उसका ऊपर में रिमार्क लिखा रहता है। जब चालक दल आपने जो अबनॉर्मलिटी का हमने दिया है, जब वो क्लोज करना चाहते हैं, ऑलरेडी उसका ऊपर रिमार्क लिखा है, वो क्लोज नहीं कर पा रहे, वो कल वर्बली हमको बोल देता है इसको क्लोज करने के लिए आज डिवीजन काउंसिल। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सर डिपार्टमेंटल यूजर के पास रिमार्क ऑलरेडी आता है फॉरवर्डेड, आपका रिमार्क उसमें डालने का ऑप्शन नहीं आता नहीं डाल पा रहा है, जो आपने डिपार्टमेंट नहीं डाल पा रहा है सेकंड रिमार्क। ओके मैं चेक करवा लेता हूँ, आज ही चेक करवा लेता हूँ बल्कि। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो सर इसको ठीक करवा लें, और अगर सर कोई इशू होगा तो सर आप कॉन्टेक्ट कर लूंगा। सर आप अपना नंबर बता दीजिए। नीतीश जी, मैं आपको बात करूंगा पर्सनली, आपको कॉल करूंगा एक केस होने से। नेक्स्ट थिंग है जो अबनॉर्मलिटी जो क्लोजिंग है ना, कभी कभी ओपन नहीं होता है अबनॉर्मलिटी क्लोजिंग रिपोर्ट। आपको न्यू, आपको दोनों जगह में रखा है, ओल्ड में भी रखा है, न्यू में रखा है, आइदर वन में रखने के लिए शिफ्ट होता है, कौन सा रिपोर्ट किस में देखूं? सर मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट विल बी शिफ्टेड इन न्यू वर्जन। नहीं ऐसे लगभग सारी रिपोर्ट्स हमने नए वाले वर्जन में शिफ्ट कर दी है। जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स जो सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, कुछ रिपोर्ट्स जो अभी ओल्ड वर्जन में है तो वो भी सर काम चल रहा है, उसको भी शिफ्ट हम जल्द से जल्द नए वर्जन में कर देंगे। और एक चीज इश्यू हो रहा है, जब भी अबनॉर्मलिटी एक बार क्रू ने फीड कर रहा है कियोस्क में ना, एक टाइम दो बार तीन बार रिपीट हो जाता है सेम मैसेज। ये पर्टिकुलर हैपनिंग इन कियोस्क में जब अबनॉर्मलिटी लिखता है क्रू। प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को, बहुत नॉइज आ रही है तो। हेलो हेलो नितेश जी, नितेश जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। एक बार अच्छा, एक केस तीन बार रिपीट हो जाता है। तुम्हारा अनम्यूट करो नीतीश, तुम्हारा अनम्यूट करो। पार्सल आया था हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो अपन सुपरवाइजर कंसोल जो भर रहा है, LI जो एब्नॉर्मलिटी भरता है, जब वो भरना जाता है तो उसमें जो उसकी डिस्प्ले की जो लिस्ट आती है, वो उसमें उसी के नॉमिनेटेड LI लोको पायलट्स की लिस्ट आती है।
अब यदि अगर वो नॉमिनेटेड एलपी के साथ में नहीं गया है तो उसको कैसे भर पाएगा? वो क्या होगा कि सिलेक्शन उसमें सर CLI को हमने अपने सर पहले ऐसा होता था कि CLI ऑन बिहाफ ऑफ क्रू भरते थे अपनी एबनॉर्मलिटी को, बट सर नहीं, अब पर लेकिन CLI खुद अपनी आईडी से एबनॉर्मलिटी भर सकते हैं, तो उनको क्रू अगर उनके एलोटेड भी नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं उसको। नहीं, पर लेकिन क्या होता है कि जब उसमें सिलेक्शन जो ड्रॉप बॉक्स आ रहा है उसमें आप उसके नॉमिनेटेड एलपी ही सिलेक्ट हो रहा है, भले ही वो अपने अगर सर अपने आप अगर सर CLI कोई भी एबनॉर्मलिटी को भरना चाहते हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व करी है तो खुद अपनी सेल्फ आईडी से भर सकते हैं सर, नहीं कहना सर। नहीं, वो तो वो हो रहा है बराबर, लॉगिन हो रहा है, पर लेकिन जो आप देखिए जो ड्रॉप बॉक्स आपने अभी जो दिखा भी रहे थे ना स्क्रीन, तो जब जो ड्रॉप बॉक्स आता है उसके नॉमिनेटेड एलआई उसमें लोको पायलट का उसको किसी न किसी को टिक मार्क करना पड़ता है। मेरा पॉइंट कहने का ये है, तो उससे होता क्या है कि वो कैसा हो रहा है कि वो जो उसका नॉमिनेटेड एलपी है वो उसके थ्रू से भी डिटेल में आ जाती है। और अगर सर एलआई, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अगर एलआई भरे हो तो उसमें किसी और का वो ना है। सर ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार सर आप पर्सनली मुझे कॉल कर लीजिएगा, अगर ये इशू अगर इस तरह का आ रहा है तो इसको दिखवा लेंगे सर। नहीं नीतीश, फंडामेंटली अगर CLI अपनी लॉगिन आईडी से कियोस्क में लॉगिन करता है या चालक दल मोबाइल ऐप पे लॉगिन करता है तो देयर इज नो नीड टू सेलेक्ट द एलपी, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पर्सनल अपनी आईडी से कर रहा है, वो अपना स्टैंड अलोन भर रहा है। तो एक बार अलग से उसको देख के फिर कंसल्ट कर लेना। क्या कहना चाहते हैं सर, यही पॉइंट था मेरा। बेटा पैसे कितने दिन है? तो अभी नीतीश, मोर क्वेश्चन। ये चैट में कुछ मैसेज लिखे हैं इन्होंने, इनके कुछ क्वेरी हो तो उनको पढ़ के जवाब दे दो। और दोनों सभी लोग म्यूट है इस समय। नीतीश, जो चैट में क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर कैन कॉन्फ़िगर इन ईच डिपार्टमेंट, तो कोई लिमिट इम्पोज तो नहीं कर रखी है ना? म्यूट करो अपने आप को पहले। सर पहले सर अभी कोई लिमिट नहीं है, और एक बार डेटाबेस से करवा लूंगा कि पहले 20 नंबर कॉन्फ़िगरेशन की लिमिट थी, तो एक उसको चेक करवा लूंगा, बट मेरे नॉलेज में नहीं है कि अभी कोई उसमें लिमिट है नहीं सर। नहीं, म्यूट हो, अभी लिमिट तो होगी, अभी 15 या जो भी होगी लिमिट होगी। एक बार सर मैं अभी कंफर्म करके बता देता हूँ। वैसे पहले 10 थी, उसके बाद 20 करी थी, फिर उसके बाद वो शायद लिमिट हटा दी थी विनोद सर ने, जो मेरी नॉलेज में है सर। ओके, तब भी 20 आर मोर देन एनफ, एक डिपार्टमेंट में 20 आ जाए एनफ। How many days close abnormality report will be available to see? Close abnormality report 3 month? 3 मंथ का तो रेडली अवेलेबल रहता है, और ज्यादा पुराना चाहिए होता फिर अलग से हमें लेना होता है। Okay. Next question है, we can see table of only pending abnormality. Table of only pending. यस सर, वो देख सकते हैं रिपोर्ट के अंदर केवल जो आपका पेंडिंग वाला जो ऑप्शन है सर, उसको आपको सर्च करके डालना होगा तो पेंडिंग एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है।
दिखा सकते हो, डेमो दे सकते हो? एबनॉर्मलिटी क्लोजिंग के अंदर जो आता है, समरी आती है, उसके अंदर पेंडिंग वाले भी आते हैं, उसमें काउंट पे क्लिक करके वो देखा जा सकता है, काउंट आ जाता है सर। सर नीतीश एक बार स्क्रीन लगा के दिखा दो। यस सर। Good evening, sir. I have a question also. Yes, please. Arpit from Allahabad division. Sir, I have a question in other subject. Sir, there is lots of LR issues facing at the time of booking. Sir, जिसकी वजह सर मुझे कई बार सर चीजें मतलब LR होते हुए भी वो ड्यू ही दिखाता है सर, और मिडिल सेक्शन में ड्यू दिखाता है सर। ये भी नहीं कि स्टार्टिंग में या एंड में दिखाए, मिडिल सेक्शन में सर दिखाता है ड्यू। जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज से कोई गाड़ी चली सतना के लिए, तो सर इरादतगंज बीच में दिखाएगा, इरादतगंज में ड्यू है। और सर जब ड्यू भी दिखाता है ना सर, तो जिस दिन ड्राइव डेट दिखाती है उसी दिन का ड्यू भी दिखाता है। ये इशू सर बहुत दिन से चल। हेलो सर, माय गॉट माय वॉइस? हेलो हाँ कपूर जी हेलो बताइए। सर। हाँ ये आपका एक्चुअली देखिए एबनॉर्मलिटी पे चल रहा है, अभी एबनॉर्मलिटी पे रहने दीजिए, आप वो मुझसे पर्सनली बात ओके सर, ओके। और ओके सर, ये ओके। एक रिपोर्ट है सर, जो एबनॉर्मलिटी क्लोजिंग की रिपोर्ट आती है, इसके अंदर स्टिल ओपन अभी आ रहे हैं सर, जिसमें 4 काउंट आ रहा है। अगर सर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पेंडिंग एबनॉर्मलिटीज है, जिस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो यहाँ से सर हम देख सकते हैं जो पेंडिंग एबनॉर्मलिटीज है उनको। ओके, पेंडिंग नहीं, पेंडिंग कैसे किया तुमने? सर ये एबनॉर्मलिटी क्लोजिंग रिपोर्ट आती है, इसके अंदर ये सारा काउंट आता है, और जो स्टिल ओपन का आता है ये काउंट आता है। ओके सर इस पे काउंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास तो ये लिस्ट हमारा आती स्टिल ओपन मींस पेंडिंग। यस यस तो ओके, ओपन का नाम चेंज कर दो, पेंडिंग कर दो, क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है सर। अब now coming back to the query raised by the Allahabad division. No doubt today it is not in the scope of the deliberation, लेकिन इशू काफी पर्टिनेंट है, LR अपडेशन। तो LR अपडेशन के बारे में आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। LR अपडेशन recently means from last 3 months it has been made based on the working on the block section. सपोज करिए कोई पर्टिकुलर ब्लॉक सेक्शन किसी रूट में आता है, ब्लॉक सेक्शन के बेसिस पे LR अपडेट होती है। वो सेम ब्लॉक सेक्शन बाकी रूट्स में भी है तो उसकी भी LR अपडेटेड हो जाती है। वाइसी वर्सा भी ट्रू है, किसी ब्लॉक सेक्शन में LR अपडेट नहीं है तो बाकी रूट में भी वो ब्लॉक सेक्शन में LR अपडेट नहीं होगी। तो डेट मे बी वन ऑफ द रीजन कि आपके यहाँ वो LR वाला इशू आ रहा होगा। सेकंड जो अभी किया है पिछले 2 महीने पहले डेवलपमेंट, उसमें ऑटोमेटिक और घाट सेक्शन में LR की जो रिक्वायरमेंट है वो 6 कर दी है, पहले 3 थी बेस्ड ऑन द रेलवे बोर्ड गाइडलाइन। तो रिसेंटली पिछले 3-4 महीने में ये 2 डेवलपमेंट किए गए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो 1:1 आपसे सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। जी सर, एक्चुअली सर अपडेशन के बाद काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला, लेकिन इसमें एक चीज, जैसे बी सेक्शन में जैसे प्रयागराज से चला कोई ड्राइवर सतना तक गया, उसने पूरा LR किया सर, लेकिन बीच में जैसे एक सेक्शन है SRJ से भेवरा, इसका बीच में ये एक नाइट ड्यू दिखा रहा है सर। वो वर्किंग तो पूरा LR तो कर रहा है प्रयागराज से सतना तक का, अगर ड्यू दिखाएगा तो सर सब पूरे में ड्यू दिखाना चाहिए सर, लेकिन ये खाली प्रयागराज से सतना में खाली एक ट्रिप इसका ड्यू दिखाते हैं बेवरा सर। ये चीज थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आई। हाँ नहीं, अब क्या कर रखा है, ब्लॉक सेक्शन बेसिस पे अपडेट हो रहा है। पहले तो होता था ना, मतलब पहले क्या था, लॉजिक क्या था, पूरा प्रयागराज टू सतना ओवरड्यू दिखाएगा। अब क्या है, देयर मे बी n नंबर ऑफ ब्लॉक सेक्शन बिटवीन प्रयागराज एंड सतना, और वो जो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम है ईच एंड एवरी ब्लॉक सेक्शन पे वर्किंग देख रहा है, उसको अपडेट कर रहा है। तो जो पर्टिकुलर ब्लॉक सेक्शन को पॉइंट आउट कर रहे हो उस पर उसकी वर्किंग हुई या नहीं हुई है वो देखना है। तो बेटर ये रहेगा आप उसकी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर देना नीतीश को या परमजीत को, उसको यहाँ पे एग्जामिन करके वी विल गेट बैक टू यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ
वो उससे पहले पूछना होगा कि प्रयागराज टू सतना के 2 रूट हैं क्या। जब वो बुक करता होगा, वो जो कंप्लेन कर रहे थे वो कृपया आएंगे लाइन पे। यस सर, यस सर। हाँ, तो जो प्रयागराज टू सतना जो रूट है वो जी उसके 2 रूट हैं क्या। सर, एक सतना प्रयागराज से मानिकपुर का, एक प्रयागराज से सतना का है। बट सर अब एक मैं आपको पिन पॉइंट कराता हूँ। प्रयागराज टू सतना के अगर 2 रूट हैं तो जब आप जी बुक करते होंगे तो जी भाई मिस्टेक जो मिस्टेक सॉरी सर, योर वॉइस इज नॉट गेटेड टू मी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। हाँ जी सर, अब हो गया। हाँ, मैं बोल रहा था, क्या शुभ नाम है आपका। अर्पित सर, अर्पित। अर्पित। अर्पित, मैं बोल रहा था प्रयागराज टू सतना के अगर 2 रूट हैं। जी हेलो अर्पित, जी सर, आई गॉट योर। प्रयागराज टू सतना के अगर 2 रूट हैं। जी कुछ हो गया? नहीं मेरा तो नहीं। हाँ, प्रयागराज टू प्रयागराज सतना टू के 2 सतना के रूट 2 हैं। रूट हैं। तो तो अगर आप अगर आप इनको इनको आ रहा प्लीज लोग अपना म्यूट कर लें एक बार, सभी म्यूट कर लें एक बार। प्रयागराज टू प्रयागराज टू सतना के सतना के दो अगर 2 रूट हैं। तो तो अगर आप अगर चेक आप बुक करते करते होंगे हो फर्स्ट फर्स्ट रूट डिफॉल्ट ले डिफॉल्ट ले लेता है, लेता है, जबकि जबकि सेकंड सेकंड रूट से गाड़ी भेज रहे हैं। तो इस तो कारण इस कारण से वो वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर ब्लॉक सेक्शन ओवरड्यू ओवरड्यू दिखाता है। दिखाता है। तो तो आप आप जब अभी भी जब भी सेलेक्ट रूट करें सेलेक्ट करें दोनों को तो थोड़ा उनको थोड़ा चेक चेंज करके करके देखें। देखें एक बार आप। नहीं, एक्चुअली सर क्या है ना कि जी सर, अगर ये सर अभी पता है ना, ये सेक्शन वाइज हो गया है LR अपडेशन। नहीं ये क्या होता है हाँ नहीं सेक्शन वाइज। तो अगर मैं तो रूट नंबर तो सर मैटर ही नहीं कर रहा है ना सर। यहाँ पे जो नहीं सेक्शन आ गया तो रूट नंबर तो मैटर ही नहीं है। नहीं जो आप प्रयागराज प्रयागराज टू सतना आप जा रहे हैं ना, के तो 2 रूट उसके हैं 2 रूट हैं क्या? नित्यानंद थोड़ा सा नित्यानंद से डाइवर्सन हो रहा कहीं से है। डाइवर्सन हो रहा है। आपने तो फर्स्ट रूट अगर आपने सेलेक्ट किया, फर्स्ट रूट सेलेक्ट किया तो सेकंड रूट से सेकंड रूट से अगर गया तो फर्स्ट वो रूट का स्किप कर जाएगा। वो स्किप कर जाएगा। अगर बाद अगर में आप बात select करेंगे कभी, मान लिया सही से नहीं करना चाहा, जी फिर बाद में सर, रॉन्ग से सेलेक्ट चाहा बाद में सही बाद करना था, रॉन्ग सेलेक्ट मिसमैच करना चाहा तो फिर मिसमैच होगा। सर एक्चुअली क्या होता है सर कि ये रूट जो बनाए थे RTIS के थ्रू बनाए थे, तो इट मीन्स कि सारे रूटों पे सेक्शन तो सेम होंगे ना सर, कोई अलग तो सेक्शन नहीं हो सकता है। जी सर, आप जी सर, उसको अलग से उसको आप जी स्क्रीनशॉट भेजिए। सॉरी सॉरी गॉट नॉट गॉट योर। अर्पित जी ये अलग से दे देना, इशू चेक कर लेंगे इसको। हाँ जी सर, इसको स्क्रीनशॉट आप भेजिए। हाँ चेक कर लेंगे अर्पित जी, अलग से दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। But and all, I would like to mention one more issue. Now it has been made block section basis. अगर पैरेलल लूट है, पैरेलल लूट है, जी जैसे सतना से इलाहाबाद के पैरेलल लूट है, पैरेलल जी लूट में अगर फॉर एग्जांपल 20 ब्लॉक सेक्शन कॉमन है, तो एक रूट पे जी वर्किंग अगर शुरू करेगा तो दूसरे रूट पे भी वो कॉमन ब्लॉक सेक्शंस की वर्किंग अपडेट हो जाएगी। जी सर, जी दिस हैज सर, बीन डन रिसेंटली टू जी सर, फैसिलिटेट द कि उसको बार-बार अलर्ट देना ना पड़े। आर यू गेटिंग जी मी? सर, ये सर आएगा। तो ये हाँ, तो ये डेवलपमेंट अभी किया है कि पैरेलल लूट में जो कॉमन ब्लॉक सेक्शंस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं और इसका वाइस जी वर्सा भी है। ओके, जी तो आप अपने रिक्वायरमेंट परमजीत और इनसे नीति से शेयर कर लेना, उसका एग्जामिन कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नितेश जी, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। अमित बोल रहा हूँ सक्सेना बसौल से। हाँ जी सर जैसे अपनी CMS एबनॉर्मलिटी की जो रिपोर्ट है, तो इसमें फिल्टर काम नहीं करता। अगर हम चाहें सिर्फ पेंडिंग निकालना, तो पहले एक्चुअली प्रीवियस वर्जन में वो पेंडिंग वगैरह सॉर्टिंग जो होती थी सिर्फ उतनी हो जाती थी बराबर। पर लेकिन अब क्या हो गया, जब से नया वर्जन लॉन्च हुआ है तो नए वर्जन में फिल्टर सिर्फ पेंडिंग का नहीं है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस वर्जन है उसमें भी नहीं होता। मतलब अगर आप पेंडिंग सॉर्ट करो तो भी आपको पूरे के पूरे उतनी दिन की जितनी भी हैं, चाहे क्लोज्ड है सब है डिटेल, सब मिलेंगे।
तो इस पे थोड़ा सा देखिए, एक्सप्लेन करवा दीजिए आप। सर मैंने सर से हम पैडिंग चेक कर सकते हैं। और अगर सर पर्टिकुलर सर आप एक बार बता दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिए या मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, नहीं मैसेज एक्चुअली मैंने पहले भी डाला हुआ था, पेंडिंग वाली काफी दिन हो गए, नहीं आ बट वो इशू सॉल्व नहीं हो पाया था। मैं फिर से डाल दूंगा लिंक। हाँ, एक बार बता दीजिएगा। जी जी, सर गुड आफ्टरनून सर, बीसीडी से बोल रहा हूँ, वेस्टर्न रेलवे से। गुड आफ्टरनून सर, बीसीडी बीसीडी पहले अपने आप को अनम्यूट करो। बीसीडी सर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, गुड Now आफ्टरनून you सर, बीसीडी से टीएल से बोल रहा हूँ सर। ये सीएमएस में जब एनर्जी कंजम्पशन आता है तो मुझे पर्टिकुलर मेरा बड़ौदा वेस्टर्न रेलवे शेड का लोगों का पर्टिकुलर एनर्जी कंजम्पशन निकालना है था, तो मुझे सर ओवर जोन वाला कंजम्पशन नहीं दिखता है सर। एनर्जी कंजम्पशन सडन जैसा सर 12951 राजधानी एक्सप्रेस है, मुंबई से दिल्ली रन करती है, वेस्टर्न रेलवे का लोको लिंक है, तो मुझे सर मेरे आईडी से जो उसका एनर्जी कंजम्पशन दिखता है अप टू हमारा क्रू जहाँ तक चलाता है वही तक दिखता है सर, आगे का पूरा नहीं दिख पाता है। और दूसरा एक पॉइंट था सर, अभी रिसेंटली हमने कुछ पुश पुल ट्रायल किया, उसमें दोनों तो फ्रंट एंड रियर दोनों जगह लोको लगा के ट्रायल किया, तो पीछे वाला लोको भी रन किया, लेकिन उसका एनर्जी कंजम्पशन और उसका लोको सिस्टम में अटैच करने के लिए कोई मैनेजमेंट ही नहीं है सर, उसमें प्रोविजन ही नहीं है सर। सर प्रोविजन तो देखिए, प्रोविजन है। आप उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, कियोस्क पे जाते हैं तो एनर्जी का ऑप्शन आता है, और अगर आप मैनुअल एंट्री के थ्रू जाते हैं तब भी उसके अंदर ऑप्शन है कि आप मल्टीपल काम कर रहे हैं या कोई और लोगों में अटैच है, तो आप उसके अंदर अपनी एनर्जी डाल सकते हैं लोगों की उसके साथ वर्किंग में। सर ये सीएमएस में नहीं, आप सीएमएस में मल्टी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके पुशपुल क्या है बेसिकली, वन लोको इन द फ्रंट वन इन द रियर, इट्स अ डबल हेडेड। मीन डबल हेडेड में क्या होता है, दोनों लोको आगे लगे रहते हैं। इसमें क्या है कि बीच में ट्रेन लेंथ आ गई है, लेकिन बोथ लोको आर इन ट्रैक्शन मोड, तो दोनों की एनर्जी आप सेपरेट फीड करो एज ए मल्टी, उसको मल्टी को रिपोर्ट में डिस्प्ले कर देंगे। ओके सर, आपका सेकंड नंबर था। हाँ, और जो फर्स्ट नंबर की आपकी मल्टी मोड। हाँ जी सर, लीड एंड मल्टी मोड। हाँ, मल्टी मोड में चले जाओ, क्योंकि लीड एंड ट्रेल तो अभी प्रोविजन नहीं है, मल्टी मोड में चले जाओ। जब पुशपुल प्रोलिफरेट होगा तो पुशपुल के लिए अलग से बना देंगे। जैसे फॉर इन्फॉर्मेशन अभी होटल लोड के लिए अलग से बना दिया, होटल लोड की एनर्जी के लिए कि उसमें प्रोविजन दे दिया है। ओके, तो वंस पुशपुल इज प्रोलिफरेटेड, कि अभी आपका बड़ौदा में ही चल रहा है, ईस्टर्न रेलवे चल रहा है, तो उसको लीड एंड ट्रेल कर देंगे। अब आप मल्टी वाले ऑप्शन से एनर्जी फीड कर सकते हैं, पर्पज सब नंबर 1। ये तो आपका सेकंड था। फर्स्ट थ्योरी आपकी ये थी कि जैसे आपको देखना है तो आपकी टेरिटरी का ही दिखता है, फुल ट्रेन का आपको फुल का मतलब फ्रॉम मुंबई नई दिल्ली नहीं दिखता। जी सर। तो नीतीश वो हेडक्वार्टर लॉगिन से देख सकते हो तो परम जी? सर उसका इनका आईडी लेवल से पता चल जाएगा कौन सी ये लेवल की इनकी आईडी बनी हुई है, उससे क्लियर हो जाएगा इनका। नहीं, बड़ौदा आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है कि आपको देखना है मुंबई राजधानी का, मुंबई से लेके दिल्ली एनर्जी कंजम्पशन। है जी सर। तो इनकी आईडी जो लेवल पे बनी होगी। ओके, तो एक बार ठीक है परमजीत, आप बात कर लेना डायरेक्ट। ठीक है सर, कर लेना। और एनर्जी फीडिंग आप उसकी प्लीज मल्टी के थ्रू करा दो। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हम महेश मंडल साउथ ईस्टर्न रेल से बोल रहे हैं सर। सर बोलिए। हाँ जी सर। ये हम लोग कभी कभी कोई लोगों का साइन ऑफ देखते हैं, साइन ऑफ देखते हैं, तो लेकिन जो हम लोग उस लोगों का हिस्ट्री देखते हैं तो सीएमएस में सर डेट वाइज नहीं रहता है, करंट डेट बीच में रहता है और प्रीवियस डेट ऊपर में रहता है। वो सीक्वेंस रहने से लेटेस्ट वाला ऊपर में रहने से बढ़िया रहता है सर, लेकिन वो कभी कभी सीक्वेंस में नहीं रहता है, लेटेस्ट डेट बीच में रह जाता है सर, बीच में या नीचे में। मान लीजिए आप लोग को एक लोग को 28359 का क्रू का साइन ऑन देखना चाह रहे हैं, तो साइन अप जब हम मानते हैं लोगों का हिस्ट्री में, मान लीजिए डेट सिलेक्ट करने के बाद, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं रहता है सर। और कभी कभी सर माने लेटेस्ट साइन अप भी अब नहीं रहता है सर। सर लेटेस्ट मलिक सर तो शायद हमारा सर्च में करते कहाँ से रिलेटेड है ना? ये लोको सर्च में करना, कहाँ पे सर्च कर रहे हैं? हाँ, लोको सर्च में ही करते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है सर।
लोको सर्च में तो मेरे हिसाब से है ही, मतलब टाइम का कर रखा है, अगर कोई इशू होगा तो हाँ, कोई केस पर्टिकुलर इशू होगा तो देख लेंगे, बाकी तो ऊपर कर रखा है, सर रिजेक्ट वाला ये ऊपर है। मालिक सर, ये माइलेज जनरेशन के बाद करते हैं इस रिपोर्ट को, या एट ए टाइम जैसे टीए बनता है उसी नहीं समय ये हाँ ये कभी भी आता है। टी कर देते हैं। एक सर सॉरी केस हो तो बता दीजिएगा, इसको हम चेक करवा लेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हाँ, Yes, please. Yes. अच्छा सर, एक चीज था सर, ये थर्ड लाइन का एक एलआर के लिए सर एक उसमें प्रोविजन दे दिया जाए, ताकि जब हम कोई थर्ड लाइन पे किसी को मतलब वर्किंग कराना है तो उसका मतलब एलआर रहता नहीं, हम लोग ऐसे ही बुक कर देते हैं पुराने रूट पे बुक करके फिर उसे वर्किंग उसी रूट पे कराते हैं। सर ऐसा कुछ प्रोविजन किया जाए कि जिससे हमारा थर्ड लाइन का एलआर अपडेट हो जाए और हम जब बुक करें तो जैसे जिसका हो उसी को बुक करें, ड्यू वाले को ना बुक कर पाए सर। कपूर जी, इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाहूंगा, तो जो एलआर होता है तो एक सेक्शन के हिसाब से भी हो रहा है। तो अभी थर्ड लाइन का जो आप बात कर रहे हो, तो जब नई कोई लाइन बनती है तो उस टाइम ये थोड़ी सी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, और उसके बाद जैसे रेगुलर वर्किंग आ जाती है तो उसके बाद फिर ब्लॉक सेक्शन के हिसाब से उसकी वर्किंग सिस्टम ले लेता है कि उस सेक्शन में कैसे गाड़ियाँ चली है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर दिल्ली डिवीजन में गाजियाबाद से साहिबाबाद है, यहाँ पर 4 लाइन चल रही है, और 4 की चारों लाइनें अप डायरेक्शन में भी चलती है, डाउन में भी चलती है, और इनका जो एलआर दिया जाता है वो वन डायरेक्शन के हिसाब से दिया जाता है, या अप में या डाउन में। ठीक है ना? ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज मैनुअली करानी पड़ रही। अगर ये मैं सिस्टम के थ्रू कराऊं और मुझे भी मतलब ये चीजें जानकारी में मिल जाए, हाँ इसी ने किया है, ऐसे तो कोई भी आदमी कहीं पे भी बुक होके हम करवा लेंगे नहीं, काम। उसमें जब मैंने बताया ना कि जब नई लाइन बनती है तो आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जब एक बार एलआर हो जाता है तो फिर तो रेगुलर वर्किंग में आ जाता है। अच्छा ठीक है सर। मैं Having more questions related with this abnormality? Four options. Or should? Yes, please. Or should we call it a day? Yes, please. सर एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, అంటే ఏం చెప్తారు దాన్ని బట్టి ये क्रू आईडी देखने। हेलो हेलो हेलो, नितेश जी आवाज आ रही है? हेलो Yes, please. Yes. सर बताइए। नितेश जी जी, ये जैसे हम क्रू का किसी का पर्टिकुलर दूसरे जोन का क्रू का बायोडाटा देखना चाहें तो वो अब नहीं आता, पहले मिल सकता था। सर रिपोर्ट के थ्रू देख सकते थे पहले, अब लेकिन सर जो नहीं, रिपोर्ट हाँ पहले देख एक्चुअली अभी क्या डिवीजन लॉबी और क्रू मतलब ये तीनों उसमें ही वो दिया है। अभी क्या होता है अक्सर कभी कभार दूसरे जोन के लोको पायलट आते हैं, कोई फेलियर हो जाता है, कुछ स्टॉलिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनके बायोडाटा में हम लोग को पोजीशन मांगी जाती है कि कब उसका प्रमोशन हुआ, इस सेक्शन में उसने कब कब काम किया। अब चूंकि वो हमारे डिवीजन का भी क्रू नहीं है, अपनी रेलवे का भी क्रू नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि उसका पर्टिकुलर्स हम लोग नहीं देख पाते। तो पहली वाली जो फैसिलिटी थी रिस्टोर अगर कर सके तो अच्छा है कि अगर एडजॉइनिंग जोन के मिल सके। ఏమన్నారు నాసిరిగా इसमें क्रू आईडी डालकर तो उसका डिटेल मिल सकता है। बायोडाटा तो दिखता है उसमें, बायोडाटा तो दिखता है। क्रू आईडी डालकर तो उसको आप चेक कर सकते हो उसका डिटेल। नहीं क्रू आईडी अपने को कई बार पता नहीं चल रहती है, नाम पता रहता है बस, नाम तो हाँ नाम है ना, आप नाम से पता कर सकते हैं। अगर लॉबी का आपको पता है किस लॉबी का है तो नाम से पता कर सकते हैं, और नाम के आधार पे फिर आईडी आ जाता है। सर ये कब होगा? जब ये अपने ही डिवीजन और अपने रेलवे का होगा,
यदि मेरा कहने का मतलब है जब हमारे जोन के बाहर का क्रू आता है हमारे और उसका अगर कुछ हो जाता है तो हमको उसका तो सिर्फ नाम पता रहता है, उसकी आईडी हमें नहीं पता रहती। अब लेकिन हेडक्वार्टर भेजनी रिपोर्ट स्टॉलिंग की, हमने लिया कि सेक्शन में इस क्रू ने कितने बार काम किया, तो हम मेरे पास तो सिर्फ नाम है और मैं कहीं से सर्च ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो दूसरे जोन का है। तो ये तो यही है कि हम लोग असल में पहले तो हमने सभी का खोल रखा था, आईआर का कोई भी क्रू देख सकता था। तो ये तो धीरे धीरे, हाँ, तो ये तो मतलब थोड़ा गलत ही था, हमारी तरफ से गलत था वो। तो इसको तो लिमिट करना ही था। तो उसको इसी तरह से लिमिट कर सकते थे कि आप यूजर आईडी किस तरह का उसके हिसाब से देख पाए। इवन हमने पहले और कंट्रोल किया था कि लॉबी वाला लॉबी का ही देख पाता था, लॉबी वाला डिवीजन का दिखाया है, तो डिवीजन वाला जोन का देख सकता है अब ये केस पे, और जोन वाला आईआर का देख सकता है। हाँ, पर लेकिन या तो सिर्फ डिवीजन कंसोल में दिया जाए, ऐसा कुछ करा जाए सर, क्योंकि क्या होता है कि आपका यूजर आईडी अगर आपका डिवीजन का यूजर आईडी है तो वो जोन का आपस में देख सकता है। आप क्या कह दूसरे जोन का देखना है आपको? हाँ, दूसरे जोन की बात कर रहा हूँ, अपने जोन का तो दिख जाएगा। अच्छा, मलिक मैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करता हूँ कि कोई कानपुर शताब्दी है, कानपुर से दिल्ली लेके आया क्रू, और गाजियाबाद ऑनवर्ड मतलब चिपियाना ऑनवर्ड तो स्टॉलिंग केस हो गया या कुछ स्प्रेड हो गया। अब नॉर्दर्न रेलवे को उस क्रू का बायोडाटा चाहिए, तो जोन वाला तो देख लेगा, लेकिन डिवीजन वाले को दिक्कत आएगी, वो उसको इलाहाबाद डिवीजन के क्रू को बायोडाटा नहीं मिल पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मेरे पास डिविजनल कंसोल है। अब मैं कैसे देख पाऊंगा दूसरे जोन वाले? और ये इस फैसिलिटी को पहले रिस्ट्रिक्ट किया था, सोच लेते हैं हम। नहीं देखिए, दो ऑप्शन है, आप हेडक्वार्टर टीएलसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो फैच कर दे देगा, लेकिन आप खुद लेना चाहते हो तो एक फॉर्मल आप एक नोट भिजवा दो अपने सीनियर डी के थ्रू, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है सर, हेलो, थैंक यू अजय। हेलो, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर क्रिस्प प्रेजेंटेशन। और हमको लगता है कि जो यूजर्स हैं उनके काफी जो कंफ्यूजन है चाहे क्वेरीज हैं वो समझ गए होंगे, और उनके काफी कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, क्लैरिटी आई होगी। अगली बार से हम लोग ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं कि पहले हम लोग एक जो यूजर्स हैं उनसे इश्यूज मंगा लेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पे देखने से लगा है कि बहुत से यूजर है क्लियर नहीं है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ, परफेक्टली सर। तो ठीक है आप ऐसा भी करें कि पहले जो यूजर्स हैं उनको बोल दें कि आपके जो भी इश्यूज हैं ठीक से देख कर उसके बाद से भी हम लोग और क्रिस्प तरीके से उसको एड्रेस कर पाएंगे, और इससे काफी फायदा हुआ होगा हम समझते हैं यूजर्स को। क्या बेटरमेंट और फर्दर जी सेशन पे किया जाएगा। और थैंक यू सीईओ सर और डायरेक्टर सर, हाँ, आप लोग के गाइडेंस के लिए सर। जी पूरे परिवार मेरे साथ है। जी सर, ठीक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है सर, मैं थैंक यू सर, राइट सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, इसके साथ सर जो है ये मीटिंग एंड किया जा रहा है सर। थैंक यू। ओके सर, बाय सर।